First of all, you are seeing a person is there in the office in a black and white picture. The comic excerpt that the way you use in communication to ridicule other people with your communication with the help of comic excerpts mean it could be a picture, it could be your body posture, it could be your comic strip, what you want to say in the form of words. When you use these comic excerpts in your communication, that is called comic excerpts. You are seeing the pictures, the lady is there and the person is there, he is inquiring something. Ma'am, okay, she is answering something that was a question asked by a person, a boy, and she answered, oh, yeah. So, okay, okay, ma'am, okay. So it was the answer of, after listening that very answer, the boy giving the answer. Another picture, the police is there along with their vehicle. They are inquiring about some case, वो किसी केस की तलाश में, and we are seeing here a very strangers and at the death of some two persons, तो वहाँ पर किसी की डेथ कैजुअल्टी है, तो उसके ऊपर पुलिस जो है that has reached along with their vehicles and they are inquiring, they are in search of some investigation. So they are in search of some case, so they are posing some type of comic excerpts. Another picture, then you are seeing that Kami Garishka, she is listening some type of a music and she is looking sad and she is posing that she is listening some serious types of songs. Another picture you are seeing here, my best friend. Okay, my best friend bear. The bear is there. It means that as we see in our daily plays or movies, the Mowgli is there in the forest and when he falls down from the trees, the bear catch that Mowgli. You see the Mowgli series? I think you see the Mowgli series, and same is here. My friend bear, the bear is there. That it is showing some comic that the bear is caring the child, the human being, the human creature with similar as human beings care their children like mothers. So the bear is there and he is the best friend of that human creature. Another picture you are seeing that a scientist is doing some research and he is observing something through microscope or he is observing something with the help of that very gadget. So if there is some type of detective or some type of hidden things you want to find out, you will see. जैसे हम कोई चीज़ किसी के घर में देखना चाहते हैं तो आप दूर से देखकर कोई डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, तो that thing could be employed in your novels, in your plays, in your dramas. So that person is posing something that he is looking for something or he is in search of something. Another picture that is posing here, the theater is there and the big screens are there. The various types of characters are posing with different styles. तो वो जो है वो पोज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में, एंड ऑल द ऑडियंस आर देयर इन द कोर्ट. वो सीन के अंदर वो देखें चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो दे आर पोजिंग सम that the characters are representing their ideas, thoughts in front of the idea. Similar the case with the quotes, mean when you represent your ideas, when you give your ideas in the form of some important quotes,
जब आप कुछ कॉमिक कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कॉमिक कोट है, पीपल से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बट आई डू नथिंग एवरी डे। तो हेयर इज़ अ कॉमिक स्ट्रिप दैट इज़ कॉमिक कोट। कोट मशहूर, किसी की कोई बात होती है तो हम कहते हैं, तो हम कह देते हैं टिट फॉर टैट। अच्छा, आपने किसी की शरारत से चेयर निकाल दी, बैठते हो गिर गई, अब थोड़ी देर बाद गई, आपके साथ भी वैसा हो गया, तो आप उसके ऊपर कह देते हैं टिट फॉर टैट, जैसा कहिया वैसा भरा। तो ये क्या है, कॉमन स्ट्रिप हो गई, कॉमिक स्ट्रिप हो गई। तो जब आप सोसाइटी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स, मुहावरे, कॉल बोलते हैं दैट प्ले द फंक्शन ऑफ कॉमिक इफ़ेक्ट ऑन लिसनिंग, ऑन कम्युनिकेशन, तो वो क्या करते हैं, जब आप माशरे में बैठे हुए कोई ऐसे कोट्स, मशहूर कॉल बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं फॉर योर कम्युनिकेशन, वो आपके कम्युनिकेशन का फंक्शन प्ले करते हैं। सच टाइप ऑफ कोट्स और जो कॉल होते हैं वो क्या प्ले करते हैं, वो कॉमिक स्ट्रिप का प्ले रोल करते हैं। ठीक है जी। सो वी कैन से द इम्पॉर्टेंट कोट्स ऑफ द पीपल कुड प्ले द रोल ऑफ अ comic excerpts. Okay, next you are also seeing an alcoholic is a someone who don't like who drinks as much as you do. तो एक शराब पीने वाला जो होता है, अल्कोहलिक इज समवन, यू तुम में से वो होता है, यू डोंट लाइक जिसको आप पसंद नहीं करते, हु ड्रिंक्स एज मच एज यू डू, जितनी कि आप पीते हो। इसका मतलब है आप उसको पसंद भी नहीं करते और जितनी आप पीते हो उतना ही वो पीता है, तो आप उसको पसंद भी नहीं करते। तो दिस इज़ अ कॉमिक। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि आपको कुछ मैनर नहीं खाने के, और जब मैं खाने लगता हूँ तो आप आते हैं, आपको भी भूख लगी है मेरे सामने में, तो मैं आपको ऑफ़र करना चाहिए ना, दिस इज़ अ गुड मैनर। तो मैं आप हाथ बढ़ाती हैं खाने के लिए, तो मैं आपके हाथ पर यूँ मार देता हूँ, ऐसे हाथ पीछे करो। तो दिस इज़ कॉमिक एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ सम जेस्चर्स दैट आई एम पोजिंग दैट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं आपके हाथ पर जो थप्पड़ मारूंगा या आपके हाथ पर ऐसे चटक दूंगा, वो क्या है, कॉमिक जेस्चर या कॉमिक एक्सेप्ट कहलाए। नेक्स्ट सी वी हैव अनदर कोट, लाइट ट्रैवल फास्टर दैन साउंड। ये एक साइंस का क्वेश्चन है कि लाइट जो है ना वो साउंड से ज़्यादा तेज़ है जी, तेज़ी से पहुँचती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दिस इज़ वाई, ये इस वजह से है क्योंकि सम पीपल अपीयर ब्राइट, कि कुछ लोग जो है वो बड़े चमकदार नज़र आते हैं, अनटिल यू हियर देम स्पीक, जब तक कि आप उन्हें सुन नहीं लेते। मीन, अब इसको तशबीह दी क्या गई, साइंस का क्वेश्चन है कि इसमें बताया गया कि लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है साउंड की निस्बत, यानी लाइट तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करती है साउंड की निस्बत, साउंड बाद में आती है और लाइट पहले वहाँ पे होती है। जैसे हम कोई बम ब्लास्ट करते हैं या कोई पटाखा छोड़ते हैं, जिसकी लाइट आप पहले देख लेते हैं, उसकी आवाज़ आपको बाद में आती है। तो उसकी रीज़न ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर दैन साउंड। अब यहाँ इसका बताया गया कि कुछ लोग बोलने से पहले चमकदार नज़र आते हैं, तो लाइट को तशबीह दी गई है इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक एक्सेप्ट दैट, कि वो जब तक बोलते हैं तो तब पता चलता है ये कोई चमकदार नहीं, इसकी ज़ाहिरी चमक है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं, ऐसे फजूल इंसान है, ये बुड़ बुड़ कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना बुड़ बुड़ कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्टूपिडिटी एंड जीनियस इज़ दैट, जहानत और हमाकत के दरमियान फ़र्क ये है कि दैट जीनियस हैज़ इट्स ऑन लिमिट्स, कि जहानत की अपनी हदूद हैं, ठीक है, इसकी अपनी हदें हैं, तो इसके दरमियान ये। तो दिस इज़ अनदर कॉमिक एक्सेप्ट, कि जहानत की तो कोई हद ही नहीं। एक साइंटिस्ट आता है वो ये थ्योरी देता है, अगला साइंटिस्ट आता है वो नया डिज़ाइन बना देता है, अगला साइंटिस्ट आता है, तो उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, जहानत की कोई लिमिट्स नहीं। तो दिस इज़ अनदर डिफरेंस एंड कॉमिक स्ट्रिप। नेक्स्ट वी सी, मैरिज इज़ द ओनली वॉर इन विच यू स्लीप विद द एनिमी। शादी वो अकेला एक जंग है जिसमें आप अपने दुश्मन के साथ ही सोते हैं। सो दिस इज़ अनदर कॉमिक स्ट्रिप, कि वन देयर इज़ अ कपल एंड यू वांट टू से समथिंग, कि वो दुश्मन है जिससे मैं रोज़ाना लड़ाई भी करता हूँ, मियाँ बीवी आपस में झगड़ालू हैं, डंडे पकड़े हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम दे स्लीप टुगेदर, वो इकट्ठे सोते भी हैं, एक ही घर में एक ही रूम में सो रहे होते हैं। तो दिस इज़ अनदर कॉमिक स्ट्रिप। द
surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that it has never tried to contact us. कहते हैं यकीनी तरीन जो इलामत है जहानत ज़िंदगी की बेहतरीन खूबसूरती की कि वो कहीं ना कहीं मौजूद है कायनात में और हमारा उससे रब्ता नहीं है. तो दिस इज़ अनदर कॉमिक एक्सेप्ट. नाउ यू आर सीइंग सम अदर इन द ब्लैक पिक्चर. वी मेट फॉर वन ऑफ टू रीजन्स. हम एक दो वजह से एक दूसरे से मिले. आइदर यू आर अ ब्लेसिंग और अ लेसन, कि या तो तुम मेरे लिए रहमत हो या फिर एक लेसन हो, सबक हो. तो दिस इज़ अनदर कॉमिक स्ट्रिप कि आप इसमें भी मज़ाक पैदा कर रहे हैं बाय सेइंग दिस कि या तो तुम मेरे लिए रहमत हो या फिर एक लेसन हो. तो दो चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट, आई एक्सप्रेस ऑल माई emotions by saying fuck in various tones. मीन मैं अपने जो तमाम इमोशंस का इजहार इस तरह से करता हूँ इन वेरियस टोन्स, अपने वेरियस टोन्स में, यानी तमाम लहजों में जो बात है, जो अपना लहजा है, जो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो इस तरह से बयान करता हूँ. दिस इज़ अनदर कॉमिक एक्सेप्ट दैट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ I shall try being nicer if you try being smarter. मैं तब कोशिश करूँगा नाइस होने की जब तुम स्मार्ट होने की कोशिश करोगे, उससे पहले नहीं करने वाला. तो दिस इज़ अनदर कॉमिक. ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो. कहते हैं पानी के जहाँ बह रहा हो ना तो मुर्दा फिश ही उस फ्लो के साथ जाती है. अदरवाइज़ फ़िश जो है कोशिश करती है मैं अपोजिट साइड को जाऊँ. तो आप किसी को ये भी कह सकते हैं जब तुम मुर्दा हो गए, तुम जो कोई कहता है उसके साथ चल पड़ते हो. सफ़ीरा कहती आओ चलें बाहर, तो ये चल पड़ती. ये कहती तो ये भी चल पड़ती. इसकी अपनी कोई सोच नहीं. तो यू वांट टू से समथिंग इन द फॉर्म ऑफ सम कॉमिक स्टाइल. अनदर, आई एम नॉट एंटी सोशल, आई एम जस्ट नॉट यूज़र फ्रेंडली. तो मैं एंटी सोशल नहीं हूँ. एंटी सोशल क्या होता है? जो समाजी रवायात के ख़िलाफ़ हो. आई एम नॉट एंटी सोशल, मैं एंटी सोशल नहीं हूँ. मीन नेचर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जो माशरा है उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, समाजी रवायत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. फिर क्या कह रहा है आगे से? आई एम जस्ट नॉट यूज़र फ्रेंडली. तो मैं इसका दोस्ताना जो है वो इस्तेमाल भी नहीं करता. इसका मतलब क्या है? ना मैं वो हूँ ना मैं ये हूँ, मैं कुछ और ही हूँ. तो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कॉमिक एक्सेप्ट दैट इज़ यूज्ड. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉमिक स्ट्रिप्स. अब कॉमिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं? व्हेन यू यूज़ कॉमिक स्ट्रिप्स, जैसे छोटी छोटी आप पट्टियाँ लगा के कॉमिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी जैसे यहाँ को फ़नी चीज़ लगी तो ये एक स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है. तो यहाँ मेरी डायग्राम बनी हो तो ये क्या कहलाएगी? कॉमिक स्ट्रिप कहलाएगी. क्या कहलाएगी? तो छोटी छोटी पट्टियों में जब आप कोई अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमिक एक्सेप्ट स्ट्रिप्स. हैव यू एवर रेड कॉमिक स्ट्रिप्स? क्या आपने इससे पहले कभी कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ी हैं? अगर नहीं पढ़ी तो जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं. देखें जी, ये आपके पास एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक कॉमिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है. गारफील्ड जो है वो एक दिखाया गया है. हेयर इज़ अ कॉमिक स्ट्रिप फॉर यू पीपल, कि यहाँ पर एक कॉमिक स्ट्रिप है जी जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अनदर सी, डज़ द नेम पीनट्स साउंड फेमिलियर? क्या पीनट्स का जो नेम है वो आप पहले उससे वाकिफ़ हैं? क्या उस नाम से वाकिफ़ हैं? दैट्स लाइफ ऑल द ट्रूज़ आर फॉल्स एंड ऑल द फॉल्सीज आर ट्रू. जो सारे झूठ हैं वो सच हैं, जो सारे सच हैं वो क्या हैं? झूठ हैं. तो दिस इज़ अनदर कॉमिक स्ट्रिप्स. डिड यू एवर हैव अ गुड लाफ विद वन ऑफ देयर स्टोरीज़ और ऑफ अदर कैरेक्टर? किसी की स्टोरी के साथ आप इस तरह मुस्कराए हों या कभी आपने. नाउ यू आर सीइंग दिस कॉमिक स्ट्रिप इन द फॉर्म ऑफ वन टाइगर इज़ देयर. ही इज़ हैप्पी बाय रिसीविंग दैट वेरी गिफ्ट. आफ्टर दैट वो बस्ट करता है. वो जब बस्ट करता है तो वो एकदम डर के मारे उल्टा हो जाता है. मीन उसकी शक्ल देखें कि वो उसको जो है कलाबाजी लग गई है उसकी. ही टर्न टर्टल, उल्टा पुल्टा हो गया. एंड द नेक्स्ट यू सी दैट ही इज़ लुकिंग लाइक जस्ट डेड. ही इज़ स्माइलिंग लाइक कि वो जैसे कोई
पटाखा चलने के बाद बर्स्ट हो गया। तो दैट टास्क इज शोइंग दैट at that time when he received that gadget he was happy, but after the burst of that gadget he was turned turtled and after that he was just lying as a dead. So this is कि आपको पैसे मिल गए, आपने पैसे इस्तेमाल किए, जब मिले तो आप उससे बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद फिर आप ख़त्म हो गए, मर गए। तो यानी ये शो किया जा रहा है कि ज़िंदगी ऐसे थी, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए कि कोई गिफ्ट मिल गया, कोई मनी मिल गई, कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, एंड व्हेन यू रिसीव यू वर हैप्पी एट दैट टाइम आफ्टर द यूजेज ऑफ इट। जब आपने उसको खोला यानी वो बर्स्ट हुआ, इस्तेमाल की वो मनी, तो आपकी हालत इस तरह होगी। और जब आपने उसे इस्तेमाल किया तो दैट वाज द एंड ऑफ योर लाइफ एंड यू आर जस्ट लाइंग देयर डेड। तो मीन यहाँ पर आप किसी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमिक स्ट्रिप। ये जो आपने पिक्चर देखी दैट इज़ कॉल्ड कॉमिक स्ट्रिप। The task: from an existing strip of chosen character, change the dialogue with an original one. In other words, of the group's creation, the meaning must be different, and the simple present and present progressive tense must be used in your sentences when you write some type of idea. Create completely new strip. आप एक नई स्ट्रिप इसी तरह देख के बनाएंगे जिसमें कोई बिल्ली बना लें, कुछ और बना लें, डॉग्स बना लें, तो आप इस तरह की कोई और स्ट्रिप बनाएंगे। एंड द करेक्टर कैन बी यूज्ड, यू कैन क्रिएट अ न्यू वन, जिससे आप एक नई कहानी जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। हाउ टू डू इट? फिर आप अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएं? चूज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम द इंटरनेट सोर्सेज ऑन द सर्फ ऑफ द वेब। आप किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो उसको सर्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फिंग। जब आप किसी वेब एड्रेस को सर्च करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? सर्फिंग बोलते हैं। तो आप किसी वेब एड्रेस से वो कॉमिक स्ट्रिप्स आप फाइंड आउट करेंगे एंड देन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ दैट कैरेक्टर। आप उस कैरेक्टर का ग्रुप ज्वाइन करेंगे विच मस्ट हैव 5 कंपोनेंट्स एट द मोस्ट। ईच पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टॉपिक ऑन द फर्स्ट वेब रिसर्च, इट्स हिस्ट्री, हाउ ओल्ड इट इज़, हु इज़ इट्स क्रिएटर, its characteristics other than newspaper, how can you have access to it, what type of language is used in that very comic strip। आपने एक कैरेक्टर लिस्ट बनानी है, उसको बनाकर उसकी एक स्टोरी बनानी है इन्हीं स्ट्रिप्स के ज़रिए कि क्या क्या हुआ। उन डायग्राम्स को नीचे, उन 5 कैरेक्टर को नीचे और फिर ऊपर उनकी स्ट्रिप्स लगानी है। तो दिस इज़ एक्टिविटी एक्चुअली फॉर यू पीपल। हियर इज़ अ वेब सर्फिंग एड्रेसेस। तो ये वेब सर्फिंग एड्रेसेस बताए गए हैं कि किस तरह से आपने इन वेब सर्फिंग एड्रेसेस को यूज़ करके, इस तरह के वेब सर्फिंग एड्रेसेस होते हैं जिनको हम गूगल पे सर्च करके वो कॉमिक एक्सर्प्ट्स जो है वो सर्च आउट करते हैं। कंक्लूजन: डू यू लाइक दिस वेब क्वेस्ट? डिड इट चेंज द वे यू सा द स्ट्रिप्स? जो आपने देखी थी क्या आपको उससे फ़ायदा? तो जब आप सर्च करते हो तो आपको और भी बहुत सारी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपने पेज पे अपनी कॉमिक स्ट्रिप्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज द a little bit introduction about comic excerpts, how you utilize the different types of quotes, different types of images, different types of figures, different types of strips in your comic excerpts while you are in a communication, and how they are effectively used in your communication to convey your ideas with the help of these comic excerpts. It play a vital role in your communication.